So in this class, what we'll do is we will recapitulate whatever we have done till our last class. So just to give you a brain map of what we have done till today in network theory courses, we now understand that phi, q, v and I are related to each other with some electronic component such that there exists a mathematical relationship between any two parameters out of these four for that particular electronic component. So when I say what about resistor? So resistor is an electronic component which relates or mathematically relates, algebraically relates voltage and current. If I say what is a capacitance, so a capacitance mathematically relates voltage and charge. Fine. We also studied like what is the inductance. Inductance relate phi and I. So we also understood that there could be linear elements as well as non-linear elements. Pushpendra, your mic was unmuted. Yeah, please mute it. So we have linear element, we can have non-linear element. So we also studied a few examples of non-linear element. For example, if I'm talking about, let's say, if current is a function of voltage. So if there is a device which relates voltage and current like this, what you will call that device as? Resistor. And if your device is of this form, V is equals to Ri or IR, then this resistor is linear. But we also understand, we also know a few other examples जिसमें linear relationship नहीं थी. Correct? जैसे कल मोहित उपाध्याय ने कुछ बताया था, diode equations. If you are considering diode equation, or you are just taking in account diodes, तो diodes are also non-linear devices. ठीक है? तो बाकी सब आप लोग पिछली रिकॉर्डेड वीडियोस में देख सकते हैं. वी हैव डन दोस थिंग्स. उसके बाद हमने ये देखा कि एक होते हैं सब पैसिव एलिमेंट्स और एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स. ओके. पैसिव एलिमेंट में फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट दिस वन इज माय पैसिव एलिमेंट. तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो होता है ये, from plus to minus. In active element, whatever that active element is, the direction of current is from minus to plus. ठीक है, ये भी देखा था. अब interconnection of any element or any electrical element will give rise to what is called as a network. So network was an interconnection of electrical components. Fine. Interconnection of electrical components. So for example, let us say that there are B electrical components in a circuit, in a network. So what is number of branches? If we have B components, what is the number of branches then? So these B actually represent elements only or branches only. So these are branches, or we can say every branch is having an element. And these branches could be arranged or put up in a network with n nodes, let's say. So you have B branches, n nodes. Then you will have actually B voltages to be determined and B currents to be determined. कुल मिला के हमारे पास 2B वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए या हमें पता करनी होती है किसी भी गिवन सर्किट. अब ये जो B वोल्टेजेस मतलब B नंबर ऑफ वोल्टेजेस, B करंट मतलब B नंबर ऑफ करंट्स आपको पता करें. अब ये जो वोल्टेज और करंट निकालने के दो तरीके बताए थे,
स्पेसिफिकली हमने जो दो तरीके पढ़े थे, एक थी नोड एनालिसिस और एक थी मैश एनालिसिस। ठीक, फिर मैश एनालिसिस हमने शुरू की, एग्जाम्पल के हिसाब से लगाना शुरू किया मैश एनालिसिस। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आप मैश एनालिसिस तब ही लगाएं, ऐसा कहा जाता है व्हेन ओनली डैश सोर्सेस आर देयर। Which type of sources are allowed in mesh analysis? Only dash passive elements are there. यहाँ पे आएगा only voltage sources are there. Only impedance type के, यानी जो ohms में लिखे जाएं, ऐसे passive elements होने चाहिए। तो अगर आपके पास B elements हैं, passive नहीं, total elements B branches हैं, तो कुल मिला के meshes कितनी बनती हैं? Number of independent minus n plus 1 नहीं independent meshes. b नहीं minus नहीं, n plus 1 यस एग्जैक्टली, b माइनस एन प्लस वन। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। कैसे? सबसे पहली चीज कि आप लिख लीजिए कंपोनेंट इक्वेशंस। दूसरी चीज आप लिखिए इंटरकनेक्शन इक्वेशंस। अच्छा, अब इंटरकनेक्शन इक्वेशंस कौन सी वाली लिखेंगे हम? कंपोनेंट इक्वेशन तो हमें पता है, वी विल जस्ट राइट ओम्स लॉ। इंटरकनेक्शन इक्वेशंस दो होती हैं, केसीएल और केवीएल। तो जब मैश एनालिसिस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? केवीएल। केसीएल नहीं लिखेंगे, केसीएल इक्वेशंस आर डैश automatically satisfied because of mesh transformation। तो आपने KVL लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करते हुए you would write what is called as a mesh transformation matrix। जिसको हम सर्किट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम B ट्रांसपोज से या इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट मैट्रिक्स। फाइन। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, इसमें कौन से वोल्टेजेस होते हैं? इसमें एलिमेंट वोल्टेज होते हैं, नोड वोल्टेज होते हैं? एलिमेंट वोल्टेजेस। यस। तो हम केवल इसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। तो ये V हो गया। ये कौन सा वेक्टर कहलाता है? करंट वेक्टर। नहीं, स्पेशली मैश करंट वेक्टर। तो I हो गया ये। तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए फिर? व्हाट शुड बी दिस? ये होना चाहिए Z या इंपीडेंस। V इज इक्वल्स टू IR। तो इसकी वैल्यूज रेजिस्टेंस जैसी होनी चाहिए, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम इंपीडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इंपीडेंस मैट्रिक्स। तो ये हुआ आपका चौथा पार्ट। ये मैश ट्रांसफॉर्मेशन वाज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट करंट्स को मैश करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स थे, जैसे हम यहाँ से IM, IM1, IM2, IM3 की वैल्यू निकाल दें। उस IM की वैल्यू निकालने के बाद यू कम टू योर सर्किट मैट्रिक्स। फिर मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके सर्किट मैट्रिक्स यूज करते हुए आपने पता कर लिया कि करंट क्या होंगे। फिर आपने इंटरकनेक्शन या कंपोनेंट इक्वेशन यूज करके पता कर लिया कि वोल्टेजेस क्या होंगे। तो यू एक्चुअली गॉट टू नो एवरीथिंग। दिस वाज द केस फॉर मैश एनालिसिस। देन आफ्टर मैश एनालिसिस हमने एक और तरीका सीखा सर्किट्स को सॉल्व करने का, एंड वो हमने बहुत डायरेक्टली सीखा था just after mesh analysis. We call that as node analysis. Okay, node analysis में भी तीन चीजें हैं, that it can only have current sources, it can only have admittances, and what will be the value of independent nodes if there are n nodes total? n minus 1. n minus 1. minus 1 Exactly n minus 1 independent node. तो शुरुआत यहीं से ही करते हैं अभी भी। Like we first have to write component equations, but here the component equation will be of this form: Vg is equals to I। पहले थी V is equals to IZ की फॉर्म में,
अब है Vg इज इक्वल्स टू I के फॉर्म में कंपोनेंट इक्वेशन, फिर इंटरकनेक्शन इक्वेशन लिखेंगे। इंटरकनेक्शन इक्वेशन इसमें कौन सी लिखते हैं? KCL, KCL. okay, KVL equations are automatically satisfied। और ऐसा करने के बाद then we do what is called as node transformation। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स हम पता करते हैं सम A ट्रांसपोज जिसमें नोड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट वोल्टेज मिल जाते हैं, we call that as node transformation। फिर हमें इस नोड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए we have to find out a representation of this form, जिसमें ये क्या चीज है? Correct. Current sources, independent current sources। This is what? Which type of voltage? voltages. Node voltage। और ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Admittance. एडमिटेंस मैट्रिक्स। और ये A ट्रांसपोज का अगर एक और बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? कल सीखा था Incidence. इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने लोगों ने लास्ट टाइम तक सीखी थी। फिर उसके बाद नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस के बाद कुछ थ्योरम्स थी। तो थ्योरम्स ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको बाकी पहले से नोन मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं जिनको आप बाकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें सीखी थी। ठीक है, पहली चीज हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि लीनियर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, और बीच में कुछ और डेफिनेशंस भी आई थी, जैसे प्लेनार नेटवर्क क्या होते हैं। किसी को याद है प्लेनार नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? प्लेनार नेटवर्क, एनीवन? No two Network elements which meet two at a element, point no Mhm. two which is elements not meet at at a point which is not a node. Exactly. A planar network is an electrical network in which no two element meet at a point which is not a node। बिल्कुल ठीक, यही। अब इसका ये तो रटने वाली मतलब डेफिनेशन है। डेफिनेटली आप ये लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन समझ में भी आ रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। हमने लीनियर सर्किट्स देखे, हमने प्लेनार सर्किट्स देखे, अब प्लेनार नेटवर्क देखे। ओके, देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग or verifying certain network theorems। First one, we did superposition। Do you guys remember what was superposition? If dash can be added, then dash can be added। So it relates to linearity of source, या इसे हम excitation बोलते हैं, and response। Okay, linearity of sources या excitation and response। If sources can be added, responses can also be added। Then we did what is called as substitution theorem। Substitution किसी को याद है? What was the substitution theorem? कोई स्टेटमेंट हिंदी में ही बता दीजिए। किसी भी बताइए। एलिमेंट के करंट और वोल्टेजेस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कीपिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड करंट वोल्टेजेस सेम। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब we can replace any element by a current source or a voltage source। We can replace any element in the circuit by a current source or a voltage source without changing the voltage and current reading in rest of the circuit। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम थी। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम के बाद एक और थ्योरम पढ़ी थी, मतलब दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक थी इक्विवेलेंट थ्योरम जिसे हमने नॉर्टन, और एक पढ़ा था थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। और आप जानते हैं नॉर्टन और थेवेनिन में क्या रिलेशनशिप थी, हमने वो भी पढ़ी थी। फिर एक पांचवी थ्योरम थी जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी।
रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या क्या यूज किया था? व्हाट वाज ऑल दैट वाज यूज्ड? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया था Bilateral. in a bilateral elements, in a network of bilateral element without any dependent source inside. यानी हम ना तो कोई डिपेंडेंट सोर्स अलाउ करते हैं, ना ही नॉन बाइलेटरल एलिमेंट अलाउ करते हैं. तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम तब अप्लाई होती है. फिर क्या होता है? तो अगर आपका नेटवर्क इज ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट्स ओनली, देन you take with respect to a pair of terminal a voltage source and an ammeter, और दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपके एमीटर की रीडिंग्स नहीं बदलेगी. इसी तरीके से अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें एक करंट सोर्स लीजिए और वोल्ट मीटर ले लीजिए, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कीजिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स या वैल्यूज या मेजरमेंट्स नहीं चेंज होंगे. ठीक है. एक इन्हीं का नॉर्टन्स और थेवेनिन के साथ में एक और कोरोलरी जैसी पड़ी थी, जिसे हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. और एक थ्योरम और पढ़ी हमने कल, हालांकि ये टेस्ट में नहीं आएगी. कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? टैलिगन्स थ्योरम. और टैलिगन्स थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? समेशन ओवर के Vk Ik is equals to 0. It means that the power which is dissipated across the circuit is equals to the power delivered. That's it. It follows from law of conservation of energy. लेकिन मैंने आपको कुछ दो चीजें और भी बताई थी, और ये भी कहा था कि हम आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे कि इसके अलावा ये दो चीजें हैं. एक correspondence between the incidence matrix of let's say two network N1 and N2, और इन दोनों की इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम है. फॉर एग्जांपल इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स A और इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स लेट्स से A1 और इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स A2 कहलाती है. सो व्हाट वी कैन डू इज, और इसके करंट I के IV हैं और से I के V के हैं, और इसके करंट्स जो हैं I के कैप और V के कैप हैं. तो वो चार स्टेटमेंट्स हैं. समेशन Vk dot Ik equals to 0. The summation is running over K in all cases. Summation Vk cap Ik cap equals to 0. This follows from law of conservation of energy. Whereas if you take summation Vk cap dot Ik, यानी वोल्टेज किसी नेटवर्क के, करंट किसी और नेटवर्क का, then it is 0 because of the virtue of which thing? This happens because of correspondence of elements of element. Yeah, because of KCL and KVL and correspondence of elements. That's it. तो ये बाकी की दो चीजें पढ़ेंगे, ये हमने कल प्रूव करने की कोशिश की थी गिवन सर्किट. That's it. तो ये आपकी पहली यूनिट लगभग समाप्त हो जाती है. हमने इतना पढ़ा है. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बची है, जो कि हम दूसरी यूनिट को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे. That's it. अब आते हैं, जैसा कि आपसे लास्ट टाइम वादा किया था, we will try to do certain questions. तो will you allow me that I can use the Sunday challenge which I used to give, so that you know how to solve those, और एक आइडिया लग जाएगा एक स्पेशल तरीके के एग्जांपल्स का, बिकॉज वो जो एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत रैंडम क्रिएट करता हूँ मैं. सो आप लोगों में से कितने लोगों ने संडे चैलेंज को सॉल्व किया है कोई? इस बार मेरे पास सोल्यूशन एक दो बच्चों के अलावा किसी का आया ही नहीं. एनीवन? हाँ जी, चलिए, तो मैं संडे चैलेंज वाले क्वेश्चंस ही यूज कर लूं फिर. क्वेश्चन नंबर 1. Given the circuit, okay, this is given. These are of 1 ohms and both of these are of 2 ohms, and this is the terminal AB which is given to us. और हमसे कहा है कि इसके अक्रॉस नॉर्टन्स और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालिए, AB के अक्रॉस. सो दोनों काम आप दोनों में से कोई भी एक काम पहले कर सकते हैं. तो लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब हुआ आई वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज ETH and the resistance RTH.
वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस दिस वैल्यू, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, और क्योंकि थेवेनिन्स है तो कौन सा वोल्टेज निकालता, वी डू ओपन सर्किट इन थेवेनिन्स और ओपन क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, Open circuit. VOC, voltage. ओपन सर्किट। तो इसको ओपन ही है बिकॉज दिस थिंग इज सीमिंगली ओपन, तो हमें RL को इन्फिनिट करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी इन्फिनिटी। तो apply anything, node analysis, mesh analysis, hybrid analysis, 12th class analysis, I am only interested in knowing कि ये वोल्टेज कितना है, ऐसे प्लस माइनस। So you can use either ways, you can use mesh analysis, you can use node analysis, whatever you want, whatever you want। तो आप बताएं क्या यूज करें, रेंडमली बता दीजिए कोई भी, जो पहली चीज मुझे कान में सुनाई देगी मैं वही अप्लाई कर दूंगा। Node analysis. We will apply node analysis, okay, but in node analysis क्या इस करंट सर्किट पे नोड एनालिसिस लगा सकते हैं, नहीं, why, करंट सोर्स तो ठीक है। अच्छा, करंट सोर्स की वैल्यू क्या दी थी याद है आपको, 2 ampere. 2 ampere. दिस इज 2 amperes, करंट सोर्स तो ठीक है, बाकी सबको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट टेक इट, टेक दिस वन, टेक दिस वन, this one, and this is it, fine। ये रहा आपका E और ये रहा आपका let's say B, fine, A and VB। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सही मायने में इसको अपने घर पे बैठकर सॉल्व कर रहे थे, आपने मुझसे एक चीज पूछनी थी, सर रेफरेंस कहाँ लें, विच नोट शुड वी ट्रीट एज रेफरेंस, किसी ने भी नहीं पूछा। आपने या तो अगर आपने सॉल्यूशन भेजा होता तो मैं बताता ठीक है, अगर आपने अपनी मर्जी से यहाँ रेफरेंस चूज किया है तो चलेगा, इट वुड वर्क, बट रेफरेंस कहाँ लें आप लोगों से किसी ने भी नहीं पूछा, इसका मतलब किसी ने सॉल्व किया ही नहीं होगा उसे। तो फिलहाल मान लेते हैं आई एम टेकिंग रेफरेंस एट दिस पर्टिकुलर नोट एज ऑफ नाउ। आप चाहते क्योंकि एग्जाम में मैंने दिया नहीं था तो अपनी मर्जी की सिलेक्ट करते दिस इज द रेफरेंस, लेकिन केवल एक रेफरेंस नोड, ऐसा नहीं चारों पांचों नोडों पे आपने ग्राउंड लगा के कह दिया हो गया सर सॉल्व, सब कुछ जीरो है, ठीक है, डोंट बी दैट स्मार्ट। अब क्या करें, ये हो गया 1 मोस, ये भी 1 मोस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 एंड दिस इज आल्सो बी 0.5। अब बताइए इसमें टोटल कितनी नोट्स है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, डिस्टिंक्ट नोट्स, 4. 3. 3. yes, so this is node first which is same as this is node second which is same as this all, so A is at node second and this is let's say node third which is same। तो independent कितनी बची, we got n equals to 3, so KCL equations n minus 1 2 ही होंगी, fine। अब क्या है, we have V second, let me call that this particular voltage is V second, let me call this particular voltage is V third, that's it। साइन वगैरह बाद में देखेंगे, हमें साइन ये चूज करना है बट बाद में देखेंगे, वी वुड सी टू इट लेटर, डन। नाउ लेट अस डायरेक्टली राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ नोड एनालिसिस। तो कौन कौन से नोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए, First and V second. second. no first is gone Second and because third. first is gone, first is reference, we will write it only with respect to second and third, so V second, V third। Tell me at second what is the sum of impedances, at second what is the sum of impedances, 3. 3. 3, anything common between second and third, 1.5. yes, the sum of impedances common between second and third is 1.5, और पैरेलल में होते हैं तो जुड़ जाते हैं एडमिटेंसेस, वही चीज फॉलो भी हो रही है, लेकिन एक चीज गलत है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग, Minus 1.5. yes exactly, and what about at third, अगर तीसरी नोट की बात करें तो what is there, what is the sum, 1.5. it is 1.5, and what is common between second and third, 1.5. -1, exactly। अब सेकंड पर देखिए, is there any source or sink, No. any current source coming in going out, no, at third anything coming in going out, 2. 2.
It is 2 amperes. 2. Now solve this for me. What is V second, V third? We will get to know V second, V third. Solve this. Quick, run, get a calculator just like me. I've got one. Okay, and solve it. So we are solving equation in two unknowns. We have 3, we have minus 1.5, we have minus 1.5, we have, sorry, I made it 3, minus 1.5, 0, minus 1.5, 1.5, 2. तो कुछ ऐसे आ रहा होगा आपका v second is equals to 1.333 and v third is equals to 2.666 and so on, all in volts. चेक कीजिए. Yes, sir. No. Okay, you're getting it. अब बताइए VAB को हम कैसे लिख सकते हैं with respect to the node voltages? Can we write VAB as V second minus V third, or we have to write it as V third minus V second minus V third? देखिए प्लस माइनस साइन है ना, तो you have to first take second, then you have to take third. You have to take it as V second minus V third. Okay, you don't have to take V third minus V second. You have to take V second minus V third. उल्टा लेना पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस माइनस साइन ऐसे लगा दिया. प्लस माइनस साइन उल्टा करके लगाया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा. तो लेट अस टेक एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी VAB. You just have to subtract the two. You will be getting minus 1.33 volts. This is your VTH. No problem whether it is coming negative or positive. हम साइन चेंज कर देंगे, don't worry about it. But there is a voltage source of some value, some integral value. Not integral value, some real value. Okay. So there is a voltage source of value minus 1.33. Don't worry about it. What should be the next step? So we know now what is ETH. It is minus 1.33. RTH कैसे निकालते हैं? क्या process है? You do something with the sources. Kill all sources. Kill. And if I have to kill a current source, what do I have to do? Killing a current source means I have to do the open circuit. Yes, exactly. I have to just do the open circuit. And now let us see what will happen. I have a resistance, I have another resistance, I have a resistance, I have another resistance. This, और इसके across मुझे देखना है. What is going to be my impedance only across this particular thing. Fine. This was of 1 ohms. This was of 1 ohms. This 2 ohms. This is also of 2 ohms. और ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ से ऐसे. There is a short circuit. And there is a short circuit over here. Now what happens is ये दोनों parallel में. But because there is short circuit, you need not to consider this. There is a short circuit over here. Right over here there is a short circuit, correct? तो इसके बाद you don't have to consider anything if there is a short circuit. उसके पीछे कुछ भी होता रहे, हमारे लिए तो ये दोनों ही complete हो गया. तो यहाँ कुछ भी होता रहे, you don't have to consider that. हाँ, हमें consider करना पड़ता अगर मैं यहाँ से अपना voltage check कर रहा था या RTH निकालता. But now my RTH is only across this, and there is a short circuit. Short circuit की वजह से इन resistances का महत्व हो गया खत्म. Fine. इन रेजिस्टेंस का टोटल महत्व हो जाता है खत्म. अब बचा कितना? 1 parallel 3. What is it? 1 parallel 2. What it is? 1 plus 1 by 2, which is 3 by 2. And 3 by 2 का 1 by, so it is equals to 2 by 3. So your RTH is coming out to be 2 by 3. And this is इसके अंदर Wheatstone bridge वाली कंडीशन भी तो चेक कर सकते हैं. 1/2 is equal to 1/2. yeah, but then what? See, आप Wheatstone bridge बेटा तब लगाते जब मैं इस पॉइंट के अक्रॉस पूछता आपसे. Are you getting it? अभी what is happening is this. और करंट सोर्स जो थी उसको किल करते हैं तो वो ओपन सर्किट बन जाती है. तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है. Fine. And here we have ground. What we have
in between the two is, excuse me, what we have in between these two is an open circuit. So this is R equals infinity, right? That's it. हमें केवल इसके अक्रॉस RTH चाहिए, only across this. फाइन, हमें इस पॉइंट से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं. तो हम लोग ऐसे ही रिड्यूस करते आ रहे हैं. सो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है देखें. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस? 2/3. अगर ये यहां से हटा के मैंने यहां ले ली होती, देन यू वुड हैव कंसीडर्ड समथिंग एल्स. Okay, sir. Okay, so this is it. Now let us consider सर something. आप शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए Okay, कि हमने बीच वाले वायर्स yeah, see, now if somebody is asking you, let's say ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 1 ohms के हैं. Fine, all of these resistances are of 1 ohms. और यहाँ से a current is coming. This is not a voltage source, but this is a current source. And somebody is asking you, tell me what is the resistance across these 2 points. तो क्या आप बाकी का consider करेंगे? Will you consider all others? No, you will not. You will only consider जो इसके across दिख रहा है. हाँ, अगर यहाँ पे कुछ parallel या कुछ और होता तो वो हम consider करते हैं, लेकिन जो series में उसे हम consider नहीं कर सकते. We will not have to connect it. ठीक है? Yes. This is it. So that's how you will have to solve it. और एक और question भी दिया था, right? There was one more question. Yeah, it is there. I don't know whether you will see that or not. So you have this was a 5 ampere source. This was 2 ohms. This was 2 ohms. This was 2 ohms, and this was also 2 ohms. और मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए एक दो सर्किट्स हैं, इक्विवेलेंट हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है किसी वोल्टेज सोर्स से. And the all is same. ये 5 amps है, ये 2 amps है, ये 2 ohms है, ये भी 2 ohms है, ये भी 2 ohms है. And this is plus minus Vx is equals to you don't know. And what I was interested in, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बताइए what is going to be the value of Vx. तो कुल मिला के आपको इस सर्किट को तो देखना ही नहीं था, आपको बस ये पता करना था कि इस 2 ohm के अक्रॉस अगर मैं ऐसे वोल्टेज लूं तो क्या वैल्यू आएगी. बस सॉल्व कीजिए, अप्लाई नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस व्हाटएवर यू वांट इन इट. ठीक है, तो what will I do is I would just take it like this. अब दो मैश करंट्स हो सकते हैं हमारे पास. अगर मैश एनालिसिस लगाते हैं तो या नोड एनालिसिस लगा लेते हैं, वैसे तो यू कैन इजीली सॉल्व इट. इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज IM1 एंड दिस वन एज IM2, इसको मैं मान रहा हूँ IM1 IM2, तो 2 into IM2 is equals to your Vx. Am I right? इन दोनों में यही रिलेशनशिप होगी. 2 into IM2 is equals to Vx, correct? Yes. Done. Now, our IM1 is fixed, which is equals to minus 5 amperes. IM1 is fixed, minus 5 amperes. अब यहाँ पे अगर आप मैश इक्वेशंस लिखते भी हैं बाकी बचे हुए, तो दो ही तो लूप्स थे, एक लूप की मैश इक्वेशन लिख भी देंगे तो क्या हमारा कुछ घाटा थोड़ा ना हो जाएगा. तो इसमें लिखें अगर इसकी इक्वेशन IM1 के हिसाब से बनाए तो IM1 का डायरेक्शन ये रहा, तो क्या इक्वेशन आएगी? इट वुड बी -2 IM1 प्लस 6 IM2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब IM1 आप जानते हैं IM1 की वैल्यू क्या है, तो केवल इस वाले के लिए अगर मैश इक्वेशन लिखते तो यही होती है ना. कैसे लिखते? टोटल सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस 6, कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड 2 -2, और बाकी IM1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें. सो इट वुड बी इक्वल्स टू 6 IM2 इज इक्वल्स टू 2 IM1.
it means IM2 is equals to 1/3 of IM1. It means IM2 is equals to minus 5/3 amperes. We got to know what is IM2, minus 5/3 amperes. अब minus 5/3 amperes को किससे मल्टीप्लाई करना है कि Vx मिल जाए? बताओ. अरे ये रहा ना. You just have to multiply it with 2. So this is nothing but equals to minus 10/3 volts. और इस minus 10/3 वोल्ट से आप सॉल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहने वाली. ठीक है, ऐसा भी कर सकते. तो बस यही पूछा था आपसे कि ये Vx क्या होगा. तो you were supposed to apply a substitution theorem in it using either mesh analysis, node analysis, hybrid analysis, 12th class analysis, 10th class analysis, whatever. तो जब मैंने Vx पूछा है तो my main idea is how you are applying substitution and not on how you are finding out IM1 and IM2 or V1 will be. You could have applied node transformation as well. अच्छा, node transformation लगाते हैं. चलिए node transformation से करके देखते हैं. तो मेरे ख्याल से आप सभी agree करेंगे that when we will apply the node transformation, the circuit will reduce to this. 0.5 मोज, 0.5, 0.5 और ये भी 0.5 मोज और ये है 5 एम्प्स. इसको मान लेते हैं रेफरेंस है. लेट्स से दिस इज द रेफरेंस. ओके, हाउ मेनी नोड्स आर देयर बाय द वे इन टोटल? 1 2 3 4, 4 नोड्स. तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम विल बी ऑफ 3/3. ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं. लेट मी कंसीडर दैट दिस वन इज नोड फर्स्ट, दिस इज नोड सेकंड, दिस इज नोड थर्ड एंड दिस इज नोड फोर्थ. अब अगर आप ऐसे इक्वेशन लिखें तो जस्ट मुझे बताते जाइए. 3/3 की मैट्रिक्स होगी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना होगा और इक्वल्स टू करके कुछ करंट सोर्स आ जाएगी. तो बताएं V फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ एडमिटेंसेस? 1.5 और -0.5 -0.5 दोनों में कॉमन है. हाँ, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में. व्हाट अबाउट 2? 2 पर कितना कनेक्टेड है? 0.5. एक मिनट रुकें आप. हेलो, हु इज दिस? बेटा क्लास में बाद में बात करना. 0.5. Anything common between 2 and 3? 2 and 3? No. No, 0. Anything common between 2 and 1? -0.5. Come to third node. Sum of impedances at node third? 1. 1. Anything common between first and third? -0.5. Second और third में कुछ common नहीं है. ठीक है. Now come to this. First node पे there is nothing like a current source coming in. Second node there is a current source of 5 amperes coming in, and on third, इसको third लिखें, third node there is nothing. तो ये equation बनी है हमारी. 1.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.50 -0.501 V first, V second, V third is equals to 0, 5, 0. Done. Now you just solve it. A system of 3/3, you have to solve it. Let me just make it that now this is going to be the equation of 3 unknowns. We start with 1.5, we have -0.5, we have -0.5 and 0. Then -0.5, sorry, we have -0.5, we have 0.5, 0 and 5. A3 is -0.5, B3 is 0, C3 is 1 and D3 is again 0. So it is coming out to be V first is equals to 6.666 something, V second is equals to 16.6666 something, and V third is equals to your 3.33333 something.
This is it. So बताएं what is the value of अगर यहाँ प्लस माइनस करें, this is going to be your Vx, क्या वैल्यू होनी चाहिए in terms of node voltages? V third minus V first. So V third minus V first करें कितना हो जाएगा ये? V third is 3.33. -3 point. तो ये हो जाएगा -3.3333 which is equals to nothing but -10/3. सही बात है ना? ऐसे सॉल्व करते हैं. Do you appreciate it? मतलब समझ आया क्या? Yes, sir. Okay, that's fine then. तो इसी तरीके के सवाल हैं, इंटरमिक्स्ड होते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा इसमें सब्स्टिट्यूशन लगानी है या कौन सी चीज कैसे लगेगी इसमें, एंड देन यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट. तो एक छोटा सा एग्जांपल और करके देखते हैं, देन आई थिंक we are already past time. No, we are not past time. We still have 5-7 minutes left. Okay, एक और एग्जांपल करके देखते हैं, and let us see how many of you could do recognize it. 10 volts, 5 ohms, all are of, let's say, 1 mhos. All are of 1 mhos. ठीक है? And I am insisting you that solve this using node transformation. So there can be many ways. कुछ करें, नोड ट्रांसफॉर्मेशन लगाने को बोल दिया है, बस सॉल्व दिस यूजिंग नोड ट्रांसफॉर्मेशन. सॉल्व दिस मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक सातवां, सातों एलिमेंट का वोल्टेज और करंट निकालो यूजिंग नोड ट्रांसफॉर्मेशन. Going to be tricky. Going to be tricky. हाँ बिल्कुल ठीक है. You can take this as a reference, right? You can take that one as reference. Then see, the very first thing which I could tell you is, do you see something when you will hide this particular thing? There is a voltage source and an impedance. It can be replaced by a current source and an impedance in parallel with it. We call that as source equivalent, Norton Thevenin equivalent. बाकी भूल जाइए, लेकिन इतने का तो काम हम वैसे बना सकते हैं. तो I can equate it with something like this. अब लेकिन आपको करंट बताना होगा. What will be the value of current which will be flowing through it? 2 ampere. What it will be? Exactly. And there we have this. That's it. अब क्योंकि बताया था आपको that there is a relationship between VOC and ISC, that if you take division of this, it should be equals to RTH. और वह RTH 5 ohm दिया हुआ है भाई, तो VOC भी दिया है, VOC upon RTH should be ISC. 5/10/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स ये होना चाहिए, और ये क्या रहेगा फिर 5, और बाकी सब भले ही 1 मोस हो जाए, नो प्रॉब्लम विद इट. एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट व्हाटएवर द वे यू वांट. मतलब अब आप चाहें जैसे सॉल्व करें, मैश एनालिसिस लगा के, नोड एनालिसिस. लेकिन अगर कहे कि नोड ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए तो नोड ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिएगा. बट यहाँ पर नोड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते थे, कुछ और हाइब्रिड जैसा लगाना होता है. यहाँ लगा सकते हैं इजीली. अब बताएं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी नोड्स आर देयर, डिस्टिंक्ट नोड्स आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए, इज दिस अ नोड? लेट मी कॉल दिस इज नोड 1. ये इसके और इसके भी बराबर है, सेम नोड है ये. डू यू एग्री? Yes. नोड 1. फिर है हमारे पास ई, लेट्स से नोड 2. नोड 2 भी ठीक है. एक और है नोड 3. और कुछ? एनीथिंग एल्स? एक और भी तो है. ये रही नोड 4th, और ये रही आपकी, ये भी एक अलग नोड है. यू हैव टू टेक इट एज अ सेपरेट नोड व्हिच इज नोड 5th. तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका 4/4 का, और आप तो सॉल्व नहीं करना जानते हैं. फिर आप कुछ दिमाग लगाएंगे कि अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हम क्या कर सकते हैं. फिलहाल के लिए
सीरीज में है तो ये क्योंकि एडमिटेंसेस हैं, यू कैन ऐड इट, लाइक इट वुड बिकम हाउ मच 1/2 मोस, या 1/2. 1/2 मोस कर लो या फिर 2 ओम्स कर लो, और सेम इसके साथ कर सकते हो, देन यू कैन सॉल्व इट। और फिर बाद में आप उसे भले ही एक्सपेंड कर सकते हैं, बिकॉज सीरीज में होने का मतलब है द करंट विल बी सेम, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। तो 4/4 का कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, आप पहले से रिड्यूस कर लीजिए सर्किट में, तो ये सर्किट बस इतना बचेगा फिर। ये 5 ओम्स है, ये 1 मो है, ये हो जाएगा 1/2 मोस, ये भी 1/2 मोस। दैट्स इट। अब आपको हर एक ब्रांच का करंट पता चल सकता है लाइक दिस इफ यू वुड सॉल्व इट। अब कितने बचे यहाँ पे नोट्स, हाउ मेनी नोट्स नाउ? दिस इज 1, ये पूरे पूरे एक ही है, ऑल आर सेम। सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो कितने बाय कितने का सिस्टम बनेगा? 2/2. 2/2 का सिस्टम। तो वी कुड रिड्यूस द 4/4 सिस्टम टू 2/2 सिस्टम। और ये 2 एम्पियर्स दिया है लेट्स से, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। Can you find out what would be the current flowing through this, flowing through this, flowing through this? You will find out easily. जो भी आप अप्लाई करें, फिर आप इसको स्प्लिट कर दीजिएगा। जैसी करंट पता चले देन यू स्प्लिट इट, कि नहीं अब तुम एक एक मोज में टूट जाओ। और जब एक एक मोज में टूट जाएंगे तो टोटल की बजाय आप आधा आधा वोल्टेज ले लीजिएगा। दैट्स इट। बट नाउ यू सी यू आर ओनली अप्लाइंग नोड ट्रांसफॉर्मेशन, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगाया आपने मैश जैसा या हाइब्रिड एनालिसिस। आप अपनी 12th क्लास की नॉलेज जरूर यूज कर रहे हैं कि भाई 4/4 का सिस्टम कैसे कम किया जाए, बट यू आर ओनली अप्लाइंग नोड ट्रांसफॉर्मेशन। जो पूछा गया है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, वही कर रहे हैं आप। So this I'm leaving as a homework, not as a DHA for you. And tomorrow we have a test, and in your test there will be questions like this only. So we will split it in the form like 4 and 6, let's say. There will be 8 MCQ type questions of half marks each, or let's say 1 marks each, 8 MCQ, 8 marks. Okay. तो इट वुड बी 8 + 12, 20 मार्क्स क्विज। तो 8 ऐसे सवाल होंगे बहुत आसान, जो मैं बार बार पूछता रहता हूँ ना आपसे, मैश एनालिसिस में कौन सी सोर्स नहीं लगाते हैं वो याद रखना है, मतलब दैट वुड बी द बेनिफिट। तो इट विल मेक यू 40% मार्क्स फ्री फॉर ऑल दोज हु अटेंडेड क्लास रेगुलरली। देन कम टू 30%, विच इज 60% और 30%। ओके, इसमें से ये तो 30% वाला क्वेश्चन है, इट वुड बी सेम फॉर ऑल। थोड़ा सा लंबा लेंदी होगा, इतना नहीं, ज्यादा लेंदी नहीं, इट वुड बी सेम फॉर ऑल। यू विल बी गिवन इनफ टाइम टू सॉल्व। पीडीएफ बनानी होगी, अपलोड करनी होगी, ठीक है, डन। ये जो 30% है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होगा, डिफरेंट फॉर ऑल, डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। 75 है, 75 अलग अलग क्वेश्चन। ये 30%। और ये क्वेश्चन आप बहुत वैसे सॉल्व करेंगे जिसमें आप बता देंगे कि ये स्टेप है, हमने ये वाली सोर्स थ्योरम अप्लाई की है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, व्हाटएवर यू अप्लाई, बट दिस 30% इज गोइंग टू बी ट्रिकी। ओके, सो आई विल चैलेंज योर मैथमेटिक्स स्किल, ठीक है, दैट्स इट। अदरवाइज यू विल एंजॉय योर टेस्ट एंड डोंट वरी अबाउट दिस 30%। कभी मुझे लगेगा कि द होल क्लास हैज नॉट परफॉर्म वेल, देन देयर विल बी स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन, ओके, अकॉर्डिंगली। That's it for today's class. Any doubt, queries, questions, suggestions? You can ask. Sir, timing of test? Timing of test. Tomorrow evening, I told you, right? On 21st evening at 8 p.m. Will it be fine? Okay, sir. 8 p.m. Yes. That's good. सर जो एग्जांपल अभी आपने कराया है इसमें मैं 5 ओम के रेजिस्टेंस को मोल्स में चेंज नहीं अरे किया ये तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, यही तो दुष्टता हो जाएगी। अगर आपने इसे चेंज नहीं किया तो नोट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, इसको 1/5 करना पड़ेगा, ठीक है, वही पाप है, झूठ है, मिथ्या है, गलती हो गई, ठीक है मैम। So, हाँ जी, excuse me, sir. अमन जैदी। Actually, we all don't have a 100 mx calculator, so I would request if you would. I put will questions, I will try solve. that, yeah, definitely. But कुछ मैट्रिक्स सॉल्वर ऑनलाइन भी आते हैं ना?
वैसे भी आप व्हाट्सएप पे तो एक दूसरे से सर पूछ ही लेते हो। सर सीएस में नहीं पूछ सकते ना सर, डीएचएस में तो आंसर कंफर्म कर लेते हैं सर। अरे हम तो कुछ उल्टा ही सोचते आ रहे थे, हमें लगा था कि सीए में सबसे ज्यादा चीटिंग करते हैं आप लोग। कोई बात नहीं, बट आई विल डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मुझे इतना समय मिले कि मैं सॉल्यूशंस कर लूं और अकॉर्डिंगली ट्वीक कर दूं कि आंसर बिना किसी कैलकुलेटर के आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।